નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ છે મનીષ કુમાર અને આ છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ જવાબદાર કોણ. મિત્રો, અમુક લોકોને પ્રતાડવામાં એટલે કે હેરાન કરવામાં, અને ખાસ જાણે કે આ દલિત છે, SC ST છે, તો પ્રતાડવામાં કોઈ પણ કમી રાખતા નથી. ભગવાને દરેકને સમાન અધિકાર આપ્યો છે, દરેકને પાણી આપ્યું છે તે સમાન છે, કોઈ ભેદભાવ વગરનું છે. હવા આપી છે તે ભેદભાવ વગરની છે, સૂર્યપ્રકાશ આપે છે તે ભેદભાવ વગરનું છે. દરેક વસ્તુ કુદરતે આપણને ભેદભાવ વગરનું આપ્યું છે. પણ માણસો ધરતી પર અવતારીને ભેદભાવ શરૂ કરી દે છે, અને તે પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે અથવા તો કોઈને નીચા બતાવવા માટે. આ જે વિડીયો હવે પછી હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે બેનનો એક વિડીયો છે જે રાજસ્થાનનો છે, અને તે બેન SC STમાં આવે છે. તે જ્યાં નોકરી કરી રહ્યા છે ત્યાં તેમને કેવી રીતે પ્રતાડવામાં આવે છે, કેવી રીતે હેરાન કરવામાં આવે છે, તેનો આ એક વિડીયો છે. મિત્રો, દરેક જુઓ આ વિડીયો. હવે આ વિડીયોમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે એવું પણ કંઈ બહુ જાણતો નથી, પણ બેને આ વ્યથા રજૂ કરી છે તો તેમાં કાંઈક તો સચ્ચાઈ હશે જ 100%. તમે જુઓ મિત્રો કે કેટલે પ્રતાડવામાં આવે છે આપણા લોકોને, કેટલા હેરાન કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, તમે જાગો અને તમારી આજુબાજુ બનતી આવી કંઈ ઘટના હોય તો એ લોકોને ન્યાય અપાવવાનો પ્રયત્ન કરો. ભગવાને આપણે બધા વ્યક્તિઓને સમાનતા આપી છે, અને આ નાત જાત જે ખાસ વધારે જાતિવાદી લોકો હોય છે તે લગભગ અભણ વ્યક્તિ હોય છે, અજ્ઞાન હોય છે, એટલા માટે તેઓ જાતિવાદ કરતા હોય છે. જો તે સચ્ચાઈ જાણતા હોય કે ભગવાને આપણને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે, કુદરતે આપણને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે, બધાનો જન્મ એક જ રીતે થયો છે, બધા એક જ રીતે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ, તો સમાનતાની તેમને ખબર પડ્યા. અને છેલ્લે બાબા સાહેબ આંબેડકરે પણ પૂરા સંવિધાનમાં દરેક વ્યક્તિને સમાનતાનો અધિકાર આપ્યો છે. તો આ વિડીયો જુઓ બહેનો, અને તમે જ નક્કી કરો કે શું પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે આ દેશની અંદર. આ બેને વિડીયોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને RSSનું નામ પણ આપ્યું છે કે તેના નેતાઓ પણ સામેલ છે આની અંદર, અને SC STના જે નેતાઓ છે તે પણ અમુક દબાવમાં કાંઈ બોલી શકતા નથી, અને એ પણ એમને ન્યાય અપાવી શકતા નથી. તમે જુઓ આ વિડીયો, અને મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરો, એને લાઈક કરો મારા વિડીયોને, અને મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ જવાબદાર કોણ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને એમાં નાની મોટી કોમેન્ટ કરતા રહો તો મને પણ પ્રેરણા મળે છે કંઈક વિડીયો બનાવવાની. તમે આ વિડીયો જુઓ મિત્રો, પછી તમે જ નક્કી કરજો કે શું ચાલી રહ્યું છે આપણા દેશમાં, અને ખાસ SC ST વિરુદ્ધ. भाई, मैं आर्य समाज की अध्यापिका हूँ, वरिष्ठ अध्यापिका 2nd ग्रेड, और यहाँ गुड़ा के राज देसूरी ब्लॉक में नाडोल के पास कार्यरत हूँ. यहाँ मेरे SC ST की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा, और यहाँ हाईवे पर होटल के पास में एक वैष्णव ने कमरा दिया. वो भी जब गांव के लोगों ने, स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे यहाँ से भी कमरा खाली करने के लिए कहा. और जहाँ मैं नौकरी करती हूँ गुड़ा के राज में, वहाँ पर एक नारायण कुखेल पर उसके यहाँ खाना बनाने की वाले के यहाँ कमरा लिया. वहाँ पे भी मुझे कमरा एक रात में ही खाली करवाया. और मैं राजसमंद से अप डाउन करती हूँ, आधा घंटा गाड़ी लेट हो जाती है तो स्टाफ को दबाकर मुझे मेरे फाटक के लॉक लगवा देते हैं. मेरा अटेंडेंस रजिस्टर को लॉक में लगा करके मेरी सील लगा देते हैं, लाल लाइन खींच लेते हैं. और मुझे 5 महीने से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है. और यहाँ से गुड़ा के राज 6 किलोमीटर का सुनसान एरिया है अंदर, जो वहाँ पर कोई सुबह सुबह साधन नहीं मिलते हैं. और पहले कोई टीचर लिफ्ट देते थे, उनको भी लोगों ने भड़का करके, और BJP RSS के लोग मुझे जब से नौकरी लगी है तब से ही नौकरी नहीं करने दे रहे हैं. और यहाँ के नेता भी BJP के, पुष्पेंद्र सिंह, PP चौधरी, ये सब मिलके बच्चों को भड़काते हैं. खेल करके बच्चे मेरी निकल उतारते हैं, बच्चों से बात नहीं करवाने दिया जाता है, मेरा पंखा बंद कर दिया जाता है, मेरी चेयर हटा दी जाती है. इतना मानसिक टेंशन दे रखा है कि मेरे चश्मे के नंबर बढ़ गए. मैं रोज रोती हूँ, और मेरे को मेरा नौकरी करना दुश्वार कर रखा है. और 6 महीने की सैलरी रोकती है. और मैं एक एकल महिला हूँ जो राजसमंद से आती हूँ. जब मैं वोल्वो गाड़ी में आती थी सुबह 7:30 बजे, वो पहले कंडक्टर मुझे बैठा लेता था और यहाँ उठा देता था. जब ये स्टाफ वालों को पता चला तो उन्होंने
कहा, उस कंडक्टर को सिखाया तो मुझे न तो राजसमंद से बैठाता है, जबकि वहाँ स्टॉपेज और लोकल सवारियां बैठाता, और यहाँ पे भी मुझे नहीं उतारता है, और कहता है कि ऑनलाइन टिकट लोगे तभी उतारूंगा, और तुम क्या पढ़ाती होगी लेट। ऐसे एसटी के जो मेघवाल है वो भी बीजेपी के जो दलाल हैं राष्ट्रीय के अध्यक्ष बने हुए हैं, और सारे मेघवाल कार्यरत है। एक देवासी और एक जनरल की अभी नई 3rd ग्रेड की अध्यापिका लगी है, और उसको सारे अधिकार दे रखे, टॉयलेट के ताला लगा रखा है, कभी सफाई नहीं करवाई जाती है। मैं बोलती तो कहते हैं कि बाहर कर लो, तुम्हारे लिए टॉयलेट का सफाई नहीं करवाएंगे, तुम्हारा बाप नहीं देता है। उसके अलावा इतनी नीच हरकतें करता है कि मेरे वहाँ जहाँ मैं कुर्सी पे बैठती हूँ वो कुर्सी भी हटवा दी जाती है, और बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। बच्चे कहते हैं हमारे को पढ़ाई नहीं करनी है, हम किताब नहीं लेके आए। जो बच्चे कुछ चुपके चुपके मेरे से बात करते ढोक लगते तो उनको भी डराया धमकाया जाता है मेरे आने के बाद उनको। और गाँव के असामाजिक तत्व विद्यालय में आकर के बैठ जाते हैं, और मुझे टी क्लब से भी वंचित कर रखा है, जो मैंने चाय पीना भी छोड़ दिया। लेकिन वहाँ ना तो होटल है, कुछ भी नहीं, मैं भूखा मरती हूँ। 1 बजे तक चक्कर आते हैं, लेकिन किसी को दया नहीं आती। बाकी सारा स्टाफ पोषाहार वाली उनके लिए स्पेशल खाना बनाती है, और 3 बार चाय देती, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं दे रखा है। उसके अलावा मुझे कोई लिफ्ट देता है तो भी नहीं। जो एक बस आती है गाँव में, बस रुकती है, बस वाले को सिखा दिया, बस वाला भी नहीं रोकता है। मैं पैदल आती हूँ 5 किलोमीटर, और रास्ते में कुछ गुंडे मेरे को पीछा करवाते हैं। मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं सुसाइड कर लूंगी। और इसी तरह से बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने, पहले मैंने बाबा साहब की भक्त हूँ और बाबा साहब के लिए संविधान की बात करती हूँ, तो बीजेपी आरएसएस वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं। और जहाँ नौकरी पर जाती हूँ एक दूसरे को फोन करके बता देते कि ये मैडम आई है ललिता रेगर, इसको कैसे कैसे मानसिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से टॉर्चर करना है, सैलरी रोक देना, सीएल लगा देना, बेवजह से मुझे प्रताड़ित करना। रूम लेती हूँ तो मकान मालिक को भड़काना, बच्चों को भड़काना, कुक हेल्पर से गालियां निकलवाना, बच्चों से नकल निकलवाना, बच्चों को पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए किताबें अवेलेबल नहीं करवाना। जबकि मैं 4 में पीजी हूँ और मैं वरिष्ठ अध्यापिका हूँ, लेकिन मुझे 1ली, 2री और 5वीं, 6ठी की क्लासें दी जाती है। और मेरे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3rd ग्रेड के टीचर को बड़ी क्लासें दी जाती है। और मेरे को सीबीओ को फोन करती हूँ, सीडीओ को फोन करती हूँ, तो वो भी नेताओं के दबाव में मेरा कोई फोन नहीं उठाते तो मुझे सही संतोषप्रद जवाब नहीं देते और मुझे ही प्रताड़ित करते हैं। मैंने कई बार मेरे समाज के अध्यक्ष वगैरह और समाज के लोगों से भी बात करी, तो उन पर भी राजनीतिक दबाव पड़ता है। हमारे समाज के जो दलाल लोग हैं तलवे चाटते हैं, SC ST के मेघवाल, रेगर, खटीक, चमार। मैं SC ST का केस भी मैंने 2-3 बार लगाया, कई बार से प्रताड़ित किया। जब से बीजेपी सरकार है मैं नौकरी में हूँ, लेकिन मेरे को एपी करवा देते हैं, मुझे ही हटा देते हैं। मैं एक्शन लेती हूँ, उनके खिलाफ जांच बैठाती हूँ तो उल्टा मुझे ही प्रताड़ित करके वहां से हटा दिया जाता है। फिर आगे जाती हूँ तो आगे वाले स्टाफ को फोन करके या सूचना देकर मेरा बायोडेटा भेज करके इस मैडम को 2 दिन में वापस हटाना, प्रताड़ित करना। इस तरह से मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रखा है। मेरा 60 किलो वजन था, उसमें से मेरा 53 किलो वजन रहा है। और मेरी आंखें, मेरा चेहरा इतना, मतलब मेरी आंखों के चश्मे के रो के नंबर बढ़ गए। मैं डेली रोती हूँ और मेरे सिर के बाल सफेद हो गए और मेरे माता पिता मेरे डिप्रेशन में चले गए मेरी टेंशन से। मेरा एक बच्चा है जो अभी 22 साल का है और बीएड कर रहा है, उसकी भी टेंशन है। वो पहले मेरे साथ रहा था, लेकिन अभी वो पढ़ाई की वजह से साथ नहीं रह पाता है। और मैंने फिर भी बाबा साहब की बात करना और अभी इनके डर से, बीजेपी सरकार के डर से संविधान की खुले बात करना छोड़ दिया। लेकिन इन कुत्तों की नज़र में मैं पहले से ही थी। जब से बीजेपी सरकार आई, पहले मैं चंद्रशेखर जी, रामन सर के वीडियो देखती थी और मैं संविधान के बारे में पढ़ी लिखी हूँ। मैंने सब में पीजी कर रखा है, 4 में। तो मुझे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती थी। SC ST, जातिवाद और महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती थी। तो इसका ये मेरे विभाग वाले और यहाँ के लोकल नेता जो बीजेपी के, दिया कुमारी और राजसमंद में भी कोई एक रतनलाल